ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ, ಮೇಘವಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಹು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ರವರು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಂತರ ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡಾ ಮೊದಲಾದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಗ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ದತ್ತ ವಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತವೆ. ನಾನು ಶಿರಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 2009ರಿಂದ 2013ರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 15,541. ಗ್ರಾಸ್ at the center, ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ at center 2004 to 13 ಇದರಲ್ಲಿ 44,637 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ NDRF 3,579. ಆಮೇಲೆ 2014 to 23 ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 30,951. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಈಸ್ 11,482 crores. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 51% ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10-12% ಆಗಿದೆ. ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಿಟ್. ಸರ್, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೇ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ. हुबली धारवाड़ के सभी प्रेस के मित्रों का मेरा नमस्कार। मैं आज आपके बीच में जो हमारा मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हमने संकल्प पत्र का नाम दिया, और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। देखिए, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जिसको हमने संकल्प पत्र कहा है, वो 3 ऐसे फाउंडेशन पे खड़ा है जिसको हमने पिलर का नाम दिया, 3 पिलर इन आवर मैनिफेस्टो. वन इज ए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये आपको समझना चाहिए. वुमेन रिजर्वेशन बिल, लखपति दीदी, वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ द SC ST एंड OBCs. कोई अगर हम सीट मेडिकल कॉलेज में या IIT में या IIM में बढ़ाएंगे, ये भी हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. PM श्री स्कूल का भी मुद्दा हो सकता है. ये सब हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही बढ़ता है और DBT जैसे ही हम सभी योजनाओं में लागू करते हैं, तो
तो भ्रष्टाचार भी कम होता है और जो बेनिफिशियरी है उसको डायरेक्ट पैसा मिलता है। उसमें हम OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का मुद्दा हो सकता है, हमारा DBT स्कीम को बढ़ाने का मुद्दा हो सकता है, विलेज स्तर पे हमारे जो टावर हैं जिससे हमें कनेक्टिविटी करनी है वो मुद्दा हो सकता है, रुपए कार्ड को बढ़ाने का मुद्दा हो सकता है, हमारे पेटीएम को बढ़ाने का मुद्दा हो सकता है, ये सारे जो भीम ऐप का मुद्दा हो सकता है, डिजिटल पेमेंट हम बढ़ाएंगे ये मुद्दा हो सकता है। ये सारे मुद्दे हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं। थर्ड है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे रोड्स हो सकते हैं, हाईवे हो सकते हैं, रेलवे का डेवलपमेंट हो सकता है, सी पोर्ट हो सकते हैं, एयरपोर्ट हो सकते हैं। ऐसे कई ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम है जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जब तीनों मिलते हैं तो ये विकसित भारत की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो का नट सेल में सार है। उनका मैनिफेस्टो क्या है? कांग्रेस का। ये हमारे बीजेपी के मैनिफेस्टो की मैंने बात की। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? वो अपीचमेंट की पॉलिसी को लेकर के बनाया गया एक मैनिफेस्टो है। जब यूपीए फर्स्ट शासन में आया 2004 में, तो कांग्रेस को मिली थी 145 सीट और बहुमत के लिए चाहिए 272, दूसरे 10 मिले। लेकिन बीजेपी को कोई कम सीटें मिली ऐसा नहीं है, 138 थे, बहुत कम फर्क था। लेकिन दूसरे दल मिले, वो शासन में आए। तो कांग्रेस ने एक थिंक टैंक बनाया जिसमें जयराम रमेश, सेम पित्रोदा, ऐसे लोग थिंक टैंक में हुए। उस थिंक टैंक का पार्ट था कि मुस्लिम हमसे दूर क्यों हुए। आई एम टॉकिंग द थिंक टैंक्स ऑफ द यूपीए फर्स्ट। इन सेकंड यूपीए सेकंड में थिंक टैंक में थोड़ा विस्तार किया, लेकिन फर्स्ट में जब थिंक टैंक बना तो जयराम रमेश पहले थिंक टैंक का पार्ट था, बाद में वो मंत्री बन गया था, तो थिंक टैंक से निकल गए थे। सेम पित्रोदा भी थिंक टैंक का ही पार्ट था। उस थिंक टैंक में एक सब्जेक्ट आया कि मुस्लिम कांग्रेस से क्यों दूर हुए। इट वॉज ए सब्जेक्ट। तो उसमें ये तय हुआ भी मुस्लिम कहाँ कहाँ गए, तो पता चला मुस्लिम सपा में गए, समाजवादी पार्टी में, मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी में भी गए, मुस्लिम टीएमसी के पास भी गए। तो उन्होंने सोचा कि मुस्लिम को हम कैसे लाएं हमारी पार्टी में। अगेन ये 1940 का ही एजेंडा है, मुस्लिम को हम कैसे सबको कांग्रेस के साथ लाएं, ये एक विषय था। उस विषय पे इन्हें सोचा कि हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी बोलने वाले हैं। तो इन्होंने लिख के दिया और प्रधानमंत्री जी को भी समझाया कि अगर सारे चीफ मिनिस्टर भी हैं उसमें, अगर आप ये बोलेंगे कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है तो मुस्लिम हमारी ओर आकर्षित होंगे। तो ये मीटिंग थी 9 दिसंबर 2006, मीटिंग थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, और मीटिंग वाज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और उन्होंने बोला कि इस देश के जो रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज, उस पे पहला हक माइनॉरिटी का, विशेष रूप से मुसलमानों का, ये बोला उन्होंने, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद उन्होंने 2009 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनमोहन सिंह जी ने मुंबई में। वो कोई भूल से बोला ऐसा नहीं है, इट वॉज ए पार्ट ऑफ थिंक टैंक कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। 2009 में भी मनमोहन सिंह जी बोले मुंबई में कि इस देश के संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का।
अब 2004 में ये कम सीटों पे आए, लेकिन 2009 में ये 204 या 205 ऐसी सीटों पे आ गए। तो इनको लगा कि हमारा ये बोलना ठीक था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। तो एक सच्चर कमेटी बनी थी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, उसमें से भी कुछ बुलवा दिया, मुसलमानों को हक मिलना चाहिए। फिर एक रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी बनी थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उसमें भी बुला दिया इन्होंने। ये यूपीए के ही सब है कारनामे। उन्होंने कहा जी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन संविधान निर्माताओं ने मना किया कि ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम नहीं दे सकते। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट में मना किया, लेकिन ये लगे रहे। लेकिन यूपीए सेकंड में बहुत घोटाले हुए, 2G का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, पता नहीं क्या क्या घोटाले हुए, बहुत घोटाले हुए। तो इनकी साख गिर गई, इनकी साख गिर गई, लेकिन ये लगे रहे। और आपको एक सनसनी के समाचार दे रहा हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, उसके ठीक पहले दिल्ली की 105 या 107 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। अरे यार, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है 2014, उसमें दे दी। इसका मतलब अपीचमेंट की इनकी पॉलिसी है। मुसलमान सारे वोट हमें मिल जाए, ये उनकी नीति है। देश किधर ही जाए कोई मतलब नहीं है, हम कैसे करके सत्ता में आ जाएं ये उनका पार्ट है। देश हित उनका कोई प्रायोरिटी नहीं है कांग्रेस की। और उसके बाद देखिए 2009 में भी इन्होंने कोशिश की, 2014 में भी कोशिश की, और 2019 में भी कोशिश की, और अब 2024 में भी कोशिश कर रहे हैं। और इनके बड़े नेता जो पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या उन्होंने किसी मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा हम सत्ता में आए, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी, मैं उनको कोट अनकोट कर रहा हूं, हम सत्ता में आए तो हम नेशनल स्तर का एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे। वी विल क्रिएट ए बॉडी जो सर्वे करेगी, पूरे देश के जितने भी सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनका सर्वे करेगी किसके पास कितना धन है, और जिसके पास ज्यादा है उनसे हम छीनेंगे, और जिसके पास नहीं है उनको देंगे। ये वो बोले उसी का ही पार्ट है। अपीसमेंट पॉलिसी का ही पार्ट है, कंटिन्यूस कर रही है। और उसके बाद सेम पित्रोदा फिर बोल गए कि इस देश में विरासत टैक्स लगना चाहिए। अरे भाई, विरासत एस्टेट टैक्स था तो राजीव गांधी ने समाप्त क्यों किया भाई? उनको इंदिरा जी की संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए, तब तो समाप्त कर दिया। अब उसी की वकालत करने लगे सैम पित्रोदा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम देश का मान और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, हम हर सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये दो हमारे महत्वपूर्ण पिलर है, आइडियाज है, जिसके तहत हमने 3 सेक्टर में काम करने का सोचा है। 1 इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जब तीनों मिल जाते हैं तो देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है और भारत विकसित भारत बन जाता है। ये मुझे इनिशियल रिमार्क करने थे। आपके जो क्वेश्चन होंगे आई कर। देखिए, बीएसएनएल को खराब किसने किया? हम मोबाइल बीएसएनएल को क्यों नहीं दे पाए? 2G का घोटाला किसने किया?
हमने बीएसएनएल को हमने कहा है कि बीएसएनएल भी एक प्लेयर है, वो रहना चाहिए, तो हमने उसको ठीक किया है। हमने भारत सरकार से उसके लिए एक पैकेज दिया है। इन्होंने डिस्टर्ब किया बीएसएनएल को, बेचा, खराब किया, समय पे मोबाइल नहीं दिए, समय पे दूसरा 2G नहीं दिया, समय पे नहीं दिया, इसलिए दिक्कत हुई। अभी बीएसएनएल को इतने टॉवर दिए हमने, आपको पता है, बहुत गांव में टॉवर लगेंगे। बीएसएनएल का नेटवर्क हमने सुधारा है। टारगेट इस बार लिया है, अब की बार 400 पार। हमने एक कैलकुलेशन किया कि हमने आर्टिकल 370 हटाया तो देश की जनता हमें 370 का आशीर्वाद देगी, बीजेपी को कमल के निशान पे, और जो एनडीए के साथी है ये मिलकर के हम 400 पार करेंगे। ये हमारा टारगेट है और हम इस दिशा में ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे 4 जून को, तब आप देखना, इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले वाली फर्स्ट फेज में जो भी पोलिंग हुआ काफ़ी कम हुआ, जो बीजेपी की चिंता बढ़ाई, इस तरह का आरोप विपक्ष कर। देखिए, मैं राजस्थान बीकानेर से आता हूँ। बीकानेर फर्स्ट फेज में मेरा इलेक्शन था 19 अप्रैल को। मैं एज ए कैंडिडेट आपको बता रहा हूँ, मैंने करीब उस दिन 19 अप्रैल को या तो 40 या उससे ज़्यादा मैंने पोलिंग स्टेशन देखे होंगे। मैं गया, मुझे कांग्रेस के टेबल और कांग्रेस के लोग 10 जगह ही मिले, मैंने काउंट किए। कांग्रेस के लोगों में ही निराशा है। हमारी 25 सीटें हैं, जिसमें एक को टिकट दी, उसने लंदन से बोला कि मैं टिकट मांग ही नहीं रहा था, मुझे दे दी, तो चेंज करनी पड़ी। जयपुर जैसी सीट पे सुनील शर्मा को टिकट दी, उसने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता, तो प्रताप सिंह खाचरियावास को दी। ऐसे कई उदाहरण हैं। कांग्रेस में ही निराशा थी हमारे यहाँ। ऐसी निराशा मुझे लगता है और जगह भी है। उनके ही लोग नहीं थे जी। जब उनमें निराशा है तो उनके आदमी आए नहीं, तो हमारे बीजेपी के वोट ठीक मिले हमें। कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता निराशा में थे और वो वोट लाए नहीं, इसलिए वोट परसेंटेज गिरा। हमारे वोट ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं। राजस्थान सर नॉर्थ इंडिया में ठीक है, साउथ इंडिया में क्या सर? साउथ इंडिया में गारंटी, साउथ इंडिया में भी हम इंप्रूव करेंगे। नहीं सर, गारंटी का इफेक्ट होगा। कौन सी गारंटी? कांग्रेस का गारंटी कर्नाटक में कौन सी? क्या है? सेंटर में पावर में आ रही है क्या? किस चीज की गारंटी है? कर्नाटक देखिए क्या, नहीं क्या है आपका 543 सीटें है ना पूरे लोकसभा की। इट इज इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। कितनी सीटें? 543। व्हाट इज द बहुमत का आंकड़ा क्या है? 272। कांग्रेस ने कितने कैंडिडेट खड़े किए? 230। तो फिर कहां से सत्ता में आएंगे? काय की गारंटी? झूठ बोल रहे हैं। उसका इंडिया अलायंस का पार्टनर आता है ना सर? तो नहीं, इंडिया अलायंस में क्या है, जैसे मैं बताता हूं, मैं सीकर राजस्थान में, वहां उन्होंने कांग्रेस ने सीट छोड़ दी कम्युनिस्ट पार्टी को कि हमारा अलायंस है, ठीक है, इंडी गठबंधन है। और राहुल गांधी के सामने कम्युनिस्ट पार्टी का ही आदमी चुनाव लड़ रहा है। क्या है ये गठबंधन है? ये ठगबंधन है, जनता जानती है। ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ? ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಹನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮೇಳ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ ಕೆಸಿ ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821313 9008447288. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. Dharwarkar Lawn Function Hall, perfect selection for a lifetime relation. Dharwarkar Lawn Hall, good and beautiful hall. Let's celebrate your parties and events. Dharwarkar Lawn Hall, modern icon and luxurious venue, wedding events, engagement ceremony, birthday parties, school and college events or other events. Enjoyable atmosphere with high-tech security, parking available. Memorable, most visit Dharwarkar Lawn Hall, near Patrapajja Mata, Yadwad Road, Dharwad. Contact 944-8359-741, 988-6391-733.